Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Sonakshi Sinha has a bizarre explanation on her unusual attire in R. Rajkumar. What happened when Ranveer Singh suffered wardrobe malfunction? Manna Dey files case against nephew for missing money and jewellery. Sonakshi Sinha, who was seen coming out of water wearing a sari in R. Rajkumar, says she will not wear a bikini even if it is relevant to a scene. While other actresses claim that they have no problem wearing a bikini for a beat scene, Sonakshi thinks differently. She wants people to be happy with what they get. ये ऐसी तैसी कमीने जाता है कि दो एक However, while she may be shy of wearing a two-piece, the actress says she enjoyed going completely rowdy in R. Rajkumar. She thoroughly enjoyed playing a rowdy in the film and she is quite thrilled about the film. She has not done anything like this before. From the look of it, the film seems to be a complete masala entertainer. Each film is different for her, and this film is a typical Prabhudeva mass entertainer with lot of music and dance. Directed by Prabhudeva, R. Rajkumar also stars Shahid Kapoor. Remember, Ranbir Kapoor dropped his towel in his very first film, Saawariya? Fortunately, this was scripted. But what happened with Ranveer Singh on the sets of Ram Leela was neither scripted nor needed. While shooting for a particular scene, director Sanjay Leela Bhansali apparently wanted his actor to look smoking hot and seductive, hence made him wear his dhoti really low. But what followed left everyone stunned. Reportedly, Ranveer's dhoti came undone and went down all the way till his feet, leaving him embarrassed. After his full Monty incident, we heard the crew members of his film teasing him the whole day and even gifting him a pair of colorful undies. Ranveer is currently in hospital recovering from dengue. We wish the actor a speedy recovery. We can't wait to see how his film is turned out to be, as he has put in a lot of effort. भाई, तेरे तो बिल्कुल ही बाल नहीं है। कहाँ गए? जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। तो दबा ना। जी। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान Legendary singer Manna Dey filed a case in the Calcutta High Court on September 30th, pleading for police action against her nephew Tarit Dey for illegally taking money and jewelry from his bank account and locker. The 94-year-old Dey sought direction from Justice Sanjay Banerjee so that police act against his nephew, who allegedly withdrew rupees 12 lakh from the account and jewelry and a watch valued at 15 lakh rupees from the locker. The singer had earlier complained to the police. The judge asked the Kolkata police to finish off the probe within 10 weeks and submit a charge sheet in another 4 weeks. The fraudulent withdrawal of the money and jewelry took place from the North Kolkata branch of a nationalized bank. The nephew, however, has claimed that he has not committed any wrong. We are yet waiting for a verdict and to know what the truth actually is. मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां Hi, I'm Shah Rukh Khan.
आया हूँ लेकर मैं फिर कितने You're watching Bollywood Masala and keep watching. इश्किया में वही किरदार है जो इश्किया में था। फ़र्क ये है कि कुछ साल बीत गए और थोड़ा सा और वो ज़ईफ़ हो गया है और थोड़ा सा अलील हो गया है, यानी कि बीमार। और शायरी का शौक़ है और इश्किया मिजाज तो उसका हमेशा से ही था। तो वो तलाश रहा है किसी महबूब को और इत्तेफाक से उसे वो मिल जाती है। तो बाकी जो होता है वो मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना यकीन दिलाऊंगा कि बहुत बेहद मज़ेदार कहानी है और हर मोड़ पे एक उसमें एक सरप्राइज़ मौजूद है और कॉमेडी एक्शन वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। हम अरशद का और मेरा किरदार बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्म में था, लेकिन पिछली फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता इसमें। ना विद्या ने जो कैरेक्टर किया था उसका कोई जिक्र आता है क्योंकि उस कहानी को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए एक बिल्कुल ही नई कहानी है खालू और बब्बन की ज़िंदगी। अब इत्तेफाक की बात है कि आपने शायद इतने शदीद तरीके से ढूंढा नहीं वरना मैं मिल जाता। उससे थोड़ा ज़्यादा शायराना अंदाज है इसमें क्योंकि वो भेस तो नहीं बदलता लेकिन बन रहा है जो वो है नहीं। और इत्तेफाक से उसे पता चलता है कि जितने किरदार हैं फिल्म में वो सभी इसी रवैये में हैं। एक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि राइटर की राइटिंग को आसमान पे नहीं पहुंचाएं बल्कि ऑडियंस तक पहुंचा सकें। हर एक डायलॉग मेरे ख्याल से जो अच्छा डायलॉग होता है ना वो अपने में मुकम्मल होता है। उसको उसी क्लैरिटी और उसी प्योरिटी के साथ ऑडियंस तक पहुंचाना एक्टर का काम है। एक्टर्स बहुत ज़्यादा अक्सर एम्फेसिस दे देते हैं डायलॉग्स पर जो कि ज़रूरी होता नहीं है और जिसे हम डायलॉग बाजी कहते हैं हिंदी फिल्म की ज़बान यकीनन, क्योंकि हम इन 3 सालों में थोड़े से और ज़्यादा तजुर्बेकार हो गए हैं। एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना पहले जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत करीबी दोस्त होंगे, लेकिन यकीन मुझे इस बात का है एक दूसरे को हम चाहते बहुत हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर 2 ऐसे एक्टर्स मिल जाएं जिनको कोई डर नहीं है दूसरे का और जिनको इस बात का भी डर नहीं है कि मैं भारी पड़ूंगा या हल्का, क्योंकि ये एक फजूल का डर होता है बहुत सारे एक्टर, तब तो बहुत मज़ा आता है। और यही तजुर्बा मेरा माधुरी जी के साथ भी हुआ क्योंकि वो भी, मैं तो उनका फ़ैन रहा हूँ, हालांकि मैं उनसे सीनियर हूँ, लेकिन उनके काम को मैंने हमेशा सराहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हर करियर। और उनके साथ भी काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर और ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में बेहद मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री इसी को कहते हैं। राजकुमार नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी रोमांटिक रोल था और गजगामिनी जो हुसैन साहब की फिल्म थी उसमें भी मैं पेंटर बना था, मैं हुसैन साहब बना था बल्कि जो माधुरी को पेंट कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो रोमांस है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा ऑडियंस को। देखिए, उर्दू शायरी मुझे देन में मिली थी जब मुझे मिर्ज़ा गालिब का रोल मिला। मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था उर्दू शायरी के बारे में उससे पहले। तो गुलजार भाई के सर जाता है ये सेहरा कि उर्दू शायरी से मेरा तारुफ उन्होंने करवाया और उसके बाद मैंने अपने आप खुद इल्म हासिल करने की कोशिश की उर्दू ज़बान में और उर्दू पढ़नी और लिखनी सीखी। बोलता तो मैं बचपन से था लेकिन पढ़ना नहीं आता था उर्दू, अब आ गया है और इसलिए भी उर्दू पढ़ना सीखा मैंने क्योंकि दुनिया का इतना कलाम है जो अगर आपको उर्दू ज़बान पढ़नी ना आए तो आप पढ़ नहीं सकते कभी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इश्किया में था। कहीं पे हमने कुछ कोशिश नहीं की कि इसको बदला जाए, तो मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहीं पे लोगों को पसंद आया था वो बब्बन का कैरेक्टर कैसा था, वो अजीब सा। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज दूसरा पार्ट 2 है,
तो ऑब्वियसली उसका स्केल बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं फिल्मों में, तो सब होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बबन के कैरेक्टर में वो ऐसे ढल चुके हैं कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, अब बबन की बारी कुछ कहने की तो पहले से हंसी छूटने लगती है कि अभी क्या करने वाले हैं, इट बी सो फनी, और मतलब बहुत ही मजाक। हाँ बिल्कुल, और मैं बता दूं कि मैं इस पिक्चर में बहुत सीरियस रोल कर रहा हूँ। नहीं, शायराना अंदाज जो है वो तो काम में आता ही है, क्योंकि लेकिन अच्छा शायर होना चाहिए। हाँ। और पोइट्री भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, जो कविताएं करेगा वो बहुत अच्छे शेर बोलने चाहिए, ऐसे नहीं कि बकवास है कोई, तो फिर तो गई उसकी तो बिल्कुल ही बैंड बज गई उसके बाद। ये जैसे पहले वाले में थे वैसे ही है, हर महीने इनको नया प्यार होता है और एकदम सच्चा वाला होता है, तो इनकी कोई फितरत बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, बहुत लाइफ में कुछ चीजें बदलती नहीं है, बब्बन उनमें से एक है। नहीं, बेगम तुम्हारा निरागस व्हाट्स कैसे वर्ड। अच्छा ठीक है, आप वही इम्प्रेशन में रहिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोनों कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं एक दुसरे से, और आपने सही कहा, गुलाब गँगमध्ये एक खूप स्ट्रॉंग रोल आहे, आणि ह्याच्यात पण म्हणजे तिचं लाईफ एवढं हॅपीनेस नाही तिच्या लाईफमध्ये, अँड दॅट्स व्हॉट शी स्ट्रगलिंग फॉर। शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, खुशी चाहिए उसे अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है बेगम पारा, तो ऐसा रोल है इसमें। और उसमें तो मतलब बाकायदा कायदा वो बनाती हैं। नहीं यार, जो कहानी है वही है, जो इश्किया की जो कैरेक्टर्स हैं, और जो ह्यूमर उन कैरेक्टर्स में आता है और उनके लाइफ में आता है, उनके बोल चाल से आता है, वो है इसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट इश्किया से थोड़ा ज़्यादा है, तो जो बड़ा मज़ेदार है। आई थिंक जब मैंने भी इश्किया देखा तो मुझे खालू और बब्बन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के वो दो हैं ना, वो बहुत कमाल है, एक अजीब ही रिलेशनशिप है जो हमने मेरे ख्याल से ज़्यादातर फिल्मों में देखा नहीं है, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया था। और मैं चाहता था कि काश थोड़ा और होते, इनके कुछ सीन्स और होते तो मज़ा आता, जो इसमें वो कमी पूरी हो गई। या नाही, ह्याच्या आधी मी राजकुमारमध्ये काम केलं त्यांच्याबरोबर, आणि त्याच्यात त्यांचा रोल विलनचा होता, आणि इट वॉज अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, पण ह्याच्यात फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ॲक्टिंग ऑपोजिट इच अदर, तर खूप छान वाटलं, कारण त्यांची पहिली फिल्म मी बघितलेली ती मासूम, आणि ऑफकोर्स मला म्हणायचीच गरज नाही की ते एवढे छान ॲक्टर आहेत स्वतः, तर खूप मजा आली त्यांच्यावर काम करून। नहीं, ये एक वो तो ना 7 मकाम है इश्क के, मोहब्बत के, प्यार के, और एक नैरेटिव का एक तरीका है। अब वो मैं आपको बता दूंगा एंड में क्या होने वाला है, तो फिर फ़ायदा क्या है, और देख लेना इनमें मौत है या नहीं। ये हटाओ जरा। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच यार। सुनील दर्शन जी के बेटे शिव दर्शन, जो इस आने वाले, हमें बहुत उम्मीदें हैं इस जोड़े से। सुनील जी की फिल्में अच्छी होती हैं। With this great launch of it. Friends, thank you for having us on stage. Thank you for being here every year to the Millennium Club, Lions Club of Millennium, because every year you're supporting our cause. I would also want to thank Sanramji and the entire team at WIPPA for all the support and cooperation that they extend to us year after year.
coming to Shiv and Asleen and Kar Le Pyar Kar Le, हमने अपने तरफ से एक न्यू फ्रेश खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की है। 17 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी, जरूर देखिएगा। खूबसूरत म्यूजिक है, खूबसूरत फिल्म है। I would want both these youngsters to actually, I mean, this is the first official function that they are attending of this sort. So I want them to actually say 2 words to you, please. Asleen first. Good afternoon everyone. यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर, और थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन रखा है हमारे लिए। लायंस क्लब मिलेनियम आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आज के दिन यहाँ पर होना मेरे लिए, शिव के लिए, सुनील सर के लिए, और हमारी फिल्म कर ले प्यार कर ले को प्रमोट करना, आई थिंक इससे पहले प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 17 जनवरी को प्लीज़, आज आप हमसे मिल चुके हैं, और 17 जनवरी को थिएटर पर वर्चुअली हमसे मिलिए और हमारी फिल्म देखें और हमें फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। And thank you so much for having us here. Thank you guys, it's actually a pleasure being here, and please support us. Thank you. I play Kabir Sayal. He's actually a daredevil. He loves living life on the edge. He has a fetish for playing bets, games, and he's a risk taker and a daredevil. It was mind blowing, superb, fabulous. So Sabi, everyone, if not my father, my uncle. Yeah, everyone, sir. So I'm excited. I'm nervous. I'm having sleepless nights. I'm having anxiety, but I'm also excited. Yes. So I feel the highlight or the USP of the movie is its freshness. We all have fresh faces. They're fresh technicians, and I feel the freshness is the USP of the movie. So बहुत highlight scenes है. सारे हैं. So romantic songs भी बहुत है. मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रीत सेहोटा फिल्म में, और प्रीत सेहोटा भी एक डेयरडेविल है, और वो खतरों से खेलती है, दूसरों को डेयर्स देती है,
और बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, स्ट्रॉन्ग लड़की है, आज की लड़की है और उसे किसी से डर नहीं लगता, कोई उसे पंगा नहीं ले सकता। तो वो जब भी कहीं जाती है, कॉलेज जाती है, तो वो एक ऐसे एटीट्यूड के साथ जाती है कि कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता। एंड बट जैसे मूवी प्रोसीड होती है वैसे आपको इसका एक सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है एंड जो बहुत ही सिंपल है, वल्नरेबल है वो लड़की और बहुत लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में। एंड इस कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग अलग इमोशंस बाहर निकल के आए। तो आई थिंक इट्स द परफेक्ट ड्रीम रोल जो मैं चाहती थी अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जहाँ तक ये आई कैम्प का सवाल है, मैं वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का काफ़ी पुराना मेंबर हूँ और हर साल जब ये कैंप होता है तो ये मुझे इनवाइट करते हैं और मैं हमेशा कहीं भी हूँ उस तारीख को मैं हमेशा मौजूद होता हूँ, इस कैंप को सपोर्ट करता हूँ, अपने दोस्तों को यहाँ ले आता हूँ। इस बार मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मुझे अपने दोस्त एक्टर्स को बुलाने की जगह अपने बेटे को और मेरी फिल्म की हीरोइन को फिल्म यहाँ लाने का मौका मिला है एंड दे आर एसोसिएटिंग विद दिस आई कैम्प एंड सपोर्टिंग इट। I think it's a great endeavor on the part of this whole team to make this happen for the workers in the film industry. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही होना चाहिए क्योंकि अगर आप प्रोमोज देखें तो आपको वाकई हर किसी को शिव पसंद आएगा। शिव की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक्टर भी बहुत अच्छा है और बाकी ग्रोथ जो है हर फिल्म के साथ उसकी ज़रूर उम्मीद है होगी। एंड आई पर्सनली फील शिव हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बी अ स्टार। मैं कोई पुत्र मोह में फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मैं फिल्म शिव को कास्ट करके इसलिए बना रहा हूँ कि उसे अगर मैं नहीं उस ब्रेक देता तो कोई ना कोई उसको ब्रेक दे ही देता। तो अगर वो सौभाग्य मुझे एज अ फादर मिल सकता है तो मैं उसके बारे में शर्मिंदा क्यों हूँ। वो एजुकेटेड लड़का है, आज का लड़का है, उसे कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को हैंडल करना, अपने आप को कंडक्ट करना अच्छी तरह जानता है। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने उससे बात की होगी तो आपको खुद ही इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो लड़का डिग्निफाइड है, सोबर है और he knows how to handle। रोमांटिक फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, उसमें एक्शन है और इतनी फ्रेश फिल्म है कि आपको देख के उसकी फ्रेशनेस आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। लगे रहो मुन्ना भाई। दिखाइए सर। Please give a big hand to this launch, our great service for the environment. How do you take this? चलो आगे जाओ, इधर आगे। सोनम धड़ा। आने वाली फिल्में हैं, डर एट द मॉल नेक्स्ट है, एक हॉरर फिल्म है सोनी पिक्चर्स की तरफ से जो कि 21 फरवरी को रिलीज है। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं और मसरूफ़ हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें ऐसे नोबल कॉजेज़ के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आज इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं, इतने लोगों ने पूरा लुत्फ उठाया इस बेनिफिट का, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तरीके से बनाने की कोशिश की गई है एक हॉरर फिल्म को यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी। आइए, डरिए, फिल्म एंजॉय कीजिए और कर दीजिए। फील्स ग्रेट है, आई थिंक ऐसे ही बनाते रहें फिल्में। लुकिंग फॉरवर्ड टू साहिब बीवी 3 नाउ। चल रहा है, अभी कहानी पे काम कर रहे हैं तिग्मांशु जी। देखिए, पहले 2 पार्ट लोगों ने इतने अप्रिशिएट किया और एंजॉय किया, तो पार्ट 3 तो डेफिनेटली बनेगा। अब वो कब हम बनाते हैं और दर्शकों के सामने लेके आते हैं, ये तो
वक्त बताएगा, लेकिन जी हाँ पार्ट 3 ज़रूर बनेगा। कब बनेगा मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। नहीं, ऐसा रिस्क वाला क्या चक्कर होता है? रिस्क तो लेना ही चाहिए आपको, तभी कुछ अच्छा नया कुछ निकल के आता है। और थोड़ी सी एक अलग लीग वाली कहानी, अलग लीग वाली फिल्में रही हैं दोनों, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई थिंक पार्ट 3 भी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। This is Dino Morea. You're watching me on Bollywood Masala. Keep watching. आप चाहते हैं परिणीति से कुछ सुनना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई फील सो ग्रेट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ, इतने सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच चरण सिंह सापरा जी का, पहले तो सेवक का थैंक यू। इतना अमेजिंग आपने इवेंट यहाँ रखा। मुझे पता चला है कि आज मैराथन भी हुआ था, जिसमें 3000 लोग थे। अमेजिंग, रियली वेल डन। मुझे अपने अम्बाला के दिन याद आ गए। हम लोग भी ऐसा करते थे, हमारी पूरी कम्युनिटी साथ में आते थे। हम लोग पेंटिंग कंपटीशन और रंगोली और स्पोर्ट्स ये सब करते थे। सो इट्स रियली रिमाइंडिंग मी ऑफ द गुड ओल्ड डेज। एंड थैंक यू सर, तुसी मैनू इत्थे बुलाया। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड आई होप यू गाइज आर सीइंग द प्रोमोज ऑफ हंसी तो फंसी। आप सबको जाना है 7 फेब को, एंड हंसी तो फंसी जरूर देखना है। ओके क्या हाल है आप लोगों का? मुलुंड बहुत सारे टैलेंट निकल रहे हैं यहाँ से। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, खबरदार अगर किसी ने मेरे पेट पे लात मारी तो। ठीक है, जो टैलेंट करना है करना, एक्टिंग मत करना। यहाँ पे गिनी चुनी पिक्चरें मिलती है, वो भी चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। मेरी एक बड़ी कमाल की फिल्म रिलीज हो रही है 3 तारीख को, 3 जनवरी को, जिसका नाम है मिस्टर जो बी करवालो। लेकिन आज नहीं, आज मैं सांबरा साहब के शो पे आया हूँ, कल बात करना। इन्हें भी बताओ। Thank you. मिलता नहीं इकलौता पीस Thank you everyone. Thank you so much. अभी भी वो दिन याद है जब मैं ए.आर. रहमान साहब से मिला। उनको मैंने पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम जब पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा व्हाट डज इट मीन। तो मैंने उनको कहा कि पोइट्री को दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि हाउ आई विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा आप मुझे माइक दीजिए, मैं गाऊंगा और आप समझ जाएंगे। आर्ट, संगीत एक ऐसी लैंग्वेज है जो आसानी से समझ में आती है, और मैं वो दिन याद करके आज वो लाइनें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
बचपन की जिंदगी के एक दूसरे इंटरव्यू शो से अलग है वो, क्योंकि इंटरव्यूज जनरली जब हम स्टार्स के करते हैं तो ज़्यादातर हम उनके करियर के बारे में पूछते हैं। जब हमने ये शो को कंसीव किया था तो हमने यही सोच के इसकी शुरुआत की थी कि इट विल बी अबाउट द पर्सन, द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, द ह्यूमन बीइंग, द आर्ट and everything about what that artist is about. And हमारे अभी 3 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली, और हमारा पहला एपिसोड था जावेद अख्तर जी के साथ। फिर आई वाज लकी कि लता मंगेशकर जी के साथ मैंने बातचीत की, और सबसे अच्छी बात थी कि हर शो के बाद हर आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ही बात कही मुझसे कि हमने इससे पहले इस तरह से किसी से बात नहीं की है, इतना दिल खोल के साफ दिल से अपने पर्सनल चीज़ें हमने किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। तो जब ये दिसंबर का महीना था तो हमारे प्रोग्रामिंग हेड सफिया और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जौहर, हमने ये डिसाइड किया कि इस महीने हम जो हमारे 90s के टॉप स्टार्स थे, म्यूजिशियंस थे, उनके साथ इस पूरे महीने रेडियो पे उनके गाने चलाएंगे और उनकी ज़िंदगी के पन्नों से हम सबको आप सबकी तारुफ करवाएंगे। 90s में जो हमने काम किया बहुत अच्छा मुझे लगा, मधु ने जो किया है कि गेट पीपल हु वर्क वेरी हार्ड। देयर हैव बीन अदर कंपोजर्स आल्सो, मेनी अदर कंपोजर्स, मेनी अदर सिंगर्स ऑफ 90s, बट उदित जी, अभिजीत जी, अलका जी, हमने बहुत साथ में काम किया। आई थिंक मधु ने जो सवाल हमसे किए हैं, they have been wonderful. In fact, I have got a lot of feedback from people who heard. I didn't get a chance to hear the interview, but मुझे बहुतों ने बोला कि कुछ गाने तो उनको अंदाजा नहीं था कि हमने बनाए या इन्होंने गाए हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, सिंगर का नाम आ जाता है या कंपोजर का नाम आता है, कभी कभी कुछ नहीं आता है। बट दिस टाइम दे वर सेइंग वाओ, ये अलका जी का गाना है, ये उदित का है, या अभिजीत का है, ये अनु जी आपने बनाया है, एंड ये इस माहौल में बना था, ये निर्माता निर्देशक से आपने काम किया है। एंड 90 hits, I think we are very proud, we are very lucky, we are blessed that in the 90s all of us started a trend of tremendous melody which is played again and again ad nauseum. वो सिंगर्स की तारीफ करूँ, मैं लिरिक राइटर्स की तारीफ करूँ, या अपनी तारीफ करूँ, या और संगीतकारों की तारीफ करूँ, but I would congratulate Madhu. Being the wife of Sonu Nigam, she's got an identity of her own. I think I thank you very much for bringing all of us on this stage. Thank you so much. यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मधुरी मैंने जो बोला, जो सवाल किए, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम। और शायद पहली बार मुझे भी एक इंटरव्यू देने में मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जब कोई इंटरव्यू करता है या कोई सवाल पूछता है, वो यही सवाल पूछते हैं कि आपने गाना कब शुरू किया, आप इस फील्ड में कैसे आई, आपने पहले किसका गाना गाया, आपका कौन सा अवार्ड मिला। तो दीज आर वेरी बोरिंग एंड वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन जो मैं 50,000 बार जिनके जवाब दे चुकी हूँ। तो मधुरिमा ने एक अलग पहलू टटोला मेरी ज़िंदगी का, मेरे करियर का, मेरी लाइफ का। और नॉर्मली मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ, मैं थोड़ा सी अपने चुनाव की बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं शी मैनेज टू गेट अ लॉट आउट ऑफ मी दैट डे एंड आई मस्ट से आई थॉरली एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा मुझे। सोनू और मधु की बहुत गुडविल है हमारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी में, और इसलिए जब उसने मुझे बोला कि इंटरव्यू करना है तो मैंने इमीडिएटली बोला श्योर विल बी डू दिस। और ये कहूँगी दैट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर फॉर शोइंग अ डिफरेंट साइड टू ऑल आर्टिस्ट, जिनकी बाकी बातें अचीवमेंट वगैरह तो दुनिया के सामने हैं, मगर कुछ नाजुक चीज़ें जीवन के, नाजुक बातें, वो उसमें शी वाज मतलब वो निकाल पाई उसको बाहर और दुनिया के सामने ला सकी। और अभी मुझे कल ही कोई कह रहा था कि आपका इंटरव्यू सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स इन इटसेल्फ। इंटरव्यू का तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सिर्फ कॉफी पीता रहा और मैं अपने मैसेज चेक करता रहा, फेसबुक कर रहा था, उदित जी के बारे में बुराई कर रहा था, अनु जी की तारीफ कर रहा था, अलका जी के बारे में तो मैं नहीं सब नहीं कभी। तो मुझे इंटरव्यू का कुछ याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो कुछ शख्स
जो आज मेरे साथ मंच शेयर कर रहे हैं। जब मैंने अनु मलिक को एक नई शादी के बाद 1 BHK में 3 भाई, उनकी वाइफ, नई शादी हुई, उनके माताजी पिताजी सरदार मलिक और आंटी, सबको एक जगह नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में मैंने देखा। एक अच्छे भले परिवार से, माता पिता परिवार, उसके बावजूद जो स्ट्रगल करते हुए देखा, गिरना उठना गिरना उठना गिरना उठना। और बीच में एक ऐसा दौर आया था कि ही वॉज सिटिंग अलोन नेहा अपार्टमेंट्स में। तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय अनु मलिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उस टाइम शायद मर्द और काफ़ी पिक्चरें आने के बाद एक गैप आ गया था, ऑलमोस्ट फॉर 1 year 2 years, तो कुछ हो नहीं रहा था। मैं उनके पास गया एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इवेंट कि जब उन्होंने बुलाया, कहाँ महबूब स्टूडियो और फिल्म सेंटर जैसे बड़े बड़े स्टूडियो में काम करने वाला आदमी मुझे कार स्टेशन के सामने छोटा सा स्टूडियो, जो आज के दिन में भी इतना छोटा स्टूडियो, उसे लाइनिंग स्टूडियो में मुझे लेके गए और हमने एक लिफाफा साथ में शेयर किया था विदाउट नोइंग द अमाउंट दैट। वहाँ से क्या होता है कि गाना नहीं सीखते हम, वहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती बनने के बाद, बिगड़ने के बाद भी जिंदगी कैसे, उसके बाद वो आदमी जो चला है। तो डोंट से 90s, इनका जिंदगी का सबसे सुपर हिट एंड शाहरुख की जिंदगी का सबसे सुपर हिट म्यूजिक मैं हूं ना, विच वॉज इन 2005। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ है, अलग ट्रेंड शुरू हुआ, एक फ्यूजन का ट्रेंड शुरू हुआ है। तो हमको किसी को भी आप लोग 90s में मत लाइएगा, वी आर टू यंग। थोड़ी बुराई कर हमने साथ में शुरू किया, बैंड्रा स्टेशन के सामने मिलते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत कभी मिलते ही नहीं थे, कभी नहीं मिलते थे, स्ट्रगल कितना भी कर लो। लेकिन डोर होती थी लक्ष्मीकांत जी के पास, वो चांस नहीं देते थे। प्यारे जी के पास डोर नहीं था, लेकिन वो मिलते थे। हम लोग हर संडे को प्यारे जी के घर पे उदित के साथ जाते थे। हम जब बस में चलते थे तो दोनों जेब में पैसा डालते थे कि टिकट कौन लेगा, जेब में पैसा डालते थे, लेकिन टिकट कौन लेगा ये नहीं पता। तो तब तक हमारा स्टॉप आ जाता था, कभी कभी बिना टिकट के पकड़ भी जाते थे, तो उदित जी भर देते या मैं भर देता। कुछ ऐसा हुआ है। इस बंदे से मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल, जब इनको देखता था तो मेरा स्ट्रगल मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है। सो ये हुआ। सेम अलका जी के मदर फादर को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, इनके पिताजी को स्ट्रगल करते हुए देखा, कैसे इनको लाते थे और रिकॉर्डिंग में इनके साय की तरह साथ में होते थे। तो आई एम इंस्पायर्ड टोटली जितने लोगों को मैं प्लेटफॉर्म मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मधुरिमा का डेडिकेशन मैंने देखा है, वो तो बहुत लंबा है। जब सोनू के प्रति, जब मेरे दुर्गा पूजा में पहली बार आई थी और आई वॉज शाउटिंग एट सोनू कि ये इतना लेट क्यों आ रहा है, इतना बड़ा स्टार बन गया अचानक सारेगामा से, ये वो क्या कह रहा था, मुझे क्या मालूम कि उसकी बनने होने वाली बीवी है, उनका वेट कर रही थी और ये चुपचाप सुन रही थी सोनू के बारे में। तो ये सब कांड हुए हैं जो हम लोग की लाइफ को बहुत इंस्पायर करते हैं, जो हमारी सिंगिंग में मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार और नए साल 2014 की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मैं मधुरिमा जी को मुबारकबाद देता हूं और मधुरिमा निगम 92.7 बिग FM को बधाइयां देता हूं कि कुछ पन्ने जिंदगी के इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश किया है और आज लोगों के दिलों में कुछ पन्ने जिंदगी के हर लोगों के दिलों में बस गया है। तो मैं चाहता हूं कि मधुरिमा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें और हमारे सामने हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक साहब हैं, जो स्पाइडर की तरह हैं। वो गिरते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, हमेशा उठते ही रहते हैं। 30 साल हो गए लेकिन अभी भी टॉप पे ही है। हमारी शुभकामनाएं हैं। और अलका जी तो अकेले हैं तो क्या गम है, और गजब का है दिन है मेरे हम सफर, यहाँ तक साथ दिया है इन्होंने। और दादा जो है हमारे अभिजीत था, सच कहा इन्होंने, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत प्यारे हैं, मैं जरूर बोलूँगा। और अभिजीत जी के लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इनके फादर इनकी सक्सेस को नहीं देख पाया, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात से। ठीक है, सबकी जिंदगी में कुछ पन्ने होते हैं, लेकिन जिंदगी में वाकई बहुत पन्ने होते हैं जब तक आदमी जीता है।
लेकिन एक पन्ने में मधुरिमा जी ने मुझे भी संभाला, समेटा। मैं बहुत खुश हूँ और इन्होंने जो इंटरव्यू लिया बहुत गजब का इंटरव्यू लिया। जो बात छुपे हुए रहते हैं कई बार वो सामने नहीं आता, उनको भी इन्होंने जागृत किया और लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इंटरव्यू सुना नहीं? आप देखिए, जिसने नहीं सुना, very sad they lose out because they missed out a lot of very interesting questions. अब हम ये तो बताना मुश्किल है अभी क्या, मतलब आप इंटरव्यू अगर आपने सुना होता तो आपको पता चलता। थोड़ा सा पर्सनल साइड पे शी आस्क्ड क्वेश्चन, बिकॉज क्या है, जो जनता होती है, गाने तो आपके सुनती है, आपके फैंस होते हैं, पर वो लॉट ऑफ पीपल आर क्यूरियस टू नो अबाउट यू नो आपका क्या क्या आपने फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, एंड ऑल्सो कुछ नाजुक लम्हे जिंदगी के, स्टफ लग जाए। तो अभी क्या बताऊँ मैं, क्या कौन से पन्ने खोले, मतलब देखिए एक सवाल किया गया है कि कितनी खुशी हो रही है आपको हमारे ये जबरदस्त सिंगर्स के साथ। तो लफ्जों में एक मिनट में तो बयान नहीं किया जा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेमोरीज जो हमारे में बहुत हैं, और ये जो गाने हमने बनाए हैं, जो आप सुनते हैं, जो लोग भी हो चुके हैं, इट वुड नॉट बीन पॉसिबल विदाउट माय सिंगर्स। उनमें से आप अभिजीत जी को देखो जो सबकी तारीफ करते हैं, अभिजीत की तारीफ जो कर रहे थे, अभिजीत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फ्रैंकली देखा जाए तो अलका जी हो, अभी शानू यहाँ नहीं है, सोनू यहाँ नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स, लॉट ऑफ मेमोरीज, एंड आई वुड से कि इट्स बीन इवेंटफुल मगर बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी। आज जब मैं देखता हूँ लोग काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो हथियार नहीं थे, हथियार यानी कि टेक्नोलॉजी वाज नॉट एट सच अ हाइट, तो आई रिमेंबर सीन्स, एंड जैसे आप पन्ने की बात कर रहे थे कि देयर बीन टाइम्स व्हेन आई फेल्ट कि मैं गाना रिकॉर्ड कैसे करूंगा, बिकॉज अ सडन म्यूजिशियन इज नॉट अवेलेबल। और एक दिन जब हम क्षमा कर रहे थे, आई रिमेंबर अलका वाज शी हैड अबाउट 102 फीवर, वो जो गाना आज इतना सुपर हिट हुआ है, वो बताना चाहता हूँ कि मुखड़ा भी मैंने लिखा था। वो क्या है, मेरा नाम तो ना ट्यून में आया था, ना वो मुलायम रूस पिक्चर आई थी, उसमें तो सबका नाम आ गया, तो मेरा नाम नहीं आया था जिसने गाना बनाया था। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आज शेयर करेंगे हम लोग। मगर शी हैड 102 फीवर एंड शी सेड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सिंग दिस सॉन्ग। आई रिमेंबर दैट, एंड इट वाज सहारा स्टूडियोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो राजकुमार सतोषी साहब को गाना बहुत पसंद था और उनको पिक्चराइज करना था। तो मैंने अलका को बोला, अलका तुम एक बार आ जाओ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शी सेड इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल बट आई एम बर्निंग विद फीवर, और ये गाना आपका इतना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग। बट शी केम, शी लर्न द सॉन्ग। और मैं ये कहना चाहता हूँ कमिटमेंट के बारे में, जो आप कहते हैं हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक एट द सिंगर्स, हाउ डू यू रिएक्ट टू योर सिंगर्स। मुखड़ा बन गया है, द प्रोड्यूसर इज इनसाइड, द डायरेक्टर सिटिंग इनसाइड, एंड योर सिंगर इज नॉट वेल। आई वेंट अप टू हर, आई सेड ये पूरी पिक्चर में मेरे सॉन्ग्स हैं एंड इनको ऐसा गाना चाहिए कि तो मैंने ट्यून सुना, मैंने ट्यून सुनाई, शी जंप्ड एट द ट्यून, शी लव्ड द सॉन्ग, बोले समथिंग वेरी न्यू इज हैपनिंग हियर, तो रिदम सुना, आई टेक अ गो। यू वोंट बिलीव दिस दैट शी हैड 102 फीवर एंड दैट सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टेक। और उसने कहा कि आई थिंक तुमने जल्दी कर दिया, पर आज इतिहास बोलता है दैट सॉन्ग वाज टेकन इन एन इंटरनेशनल फिल्म मुलायम रूज एंड इट्स बिकम अ ह्यूज हिट। आई मीन दीज आर मोमेंट्स ऑफ कमिटमेंट व्हिच आई feel very proud that I was lucky to have such great talent. Tunes कितने भी अच्छी हो, but you have a great writer, you have great talent, and that's the reason why this music is so famous. हम लोग 90s का जो बात करते हैं, वो लम्हा याद आते हैं। Today when I would thank Madhu that she's brought us together. In fact, हम लोग जब आ रहे थे, we were saying, मैं Madhu, you know, I've come from here, I've come from here, but sitting here, I would say, Madhu, thank you very much for getting all of us together to relive 90s again. क्या बात है। इन्फॉर्मेशन तो वैसे देखें तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया हमने, पर अगर आप इस शो को सुने तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिसर्च वर्क बहुत कम है। इसमें मैं एक इंसान को जितना मैं इनको सबको थोड़ा बहुत
सोनू जी की वजह से जानती हूँ, तो एज अ पर्सन मुझे पता है कि ये कैसे हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इनसे मैं किस हद तक किस तरह से बात करके वो चीज़ों को सुनने वालों तक पहुंचा सकती हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी की वाइफ हूँ और इनके कलीग दोस्त उनकी वाइफ हूँ, तो मुझे भी सवाल पूछने के पहले 2 बार सोचना पड़ता है। पर एट द सेम टाइम मुझे सुनने वालों को वो सारी चीज़ें पेश भी करनी है जो उन्होंने कभी सुना नहीं है, तो उसको मैं बहुत ध्यान से अपने दिमाग में पहले सोचती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ ताकि उनको भी बुरा ना लगे और वो दिल खोल के फिर बोलते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एक्सपेक्ट नहीं, आप जनरली आप इंटरव्यू पे जानते हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझसे तो ये पूछेंगे मैंने अपने स्ट्रगल में क्या किया था, मेरे करियर में मैंने शुरुआत में क्या किया, ये किया वो क्या। यहाँ उनको पता ही नहीं था कि मैं पूछने क्या वाली हूँ, तो हर एक सवाल के बाद उनको ये नहीं पता था कि अब कौन सा सवाल आने वाला है। तो उस वक्त दिमाग में अगर प्रेपरेशन ना हो तो बात सच्चाई से निकलती है। तो जितने आर्टिस्ट ने बात की है उन सब ने अपनी ज़िंदगी के पन्नों को एकदम एक्चुअली कोरे कागज़ के तरह उसमें दोबारा लिखा है उन लोगों ने हमारे लिए। हमने एक्चुअली बहुत जल्दबाजी में शो की शुरुआत की थी और उस वक्त मैंने सोचा कि पहले शो को बढ़ने देते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं किसी की एक पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उस पर्सनालिटी की एक शैडो को लेके मैं चलती हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता। तो अब जब लोगों ने पसंद किया, लोग जानते हैं, तो हमने सोचा अब उसके बारे में अब हम कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये था कि पहली बार रेडियो पर, या जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी भी चैनल में शोज़ पे आपने एज रियलिटी शोज़ में जजेस की तरह इन लोगों को पाया होगा। वो आपस में कभी बात नहीं किए हैं इस तरह से। आज जब आप संडे को ये शो सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपनी दोस्ती, या कभी शायद किसी को कुछ बुरा लगा हो किसी के बारे में, या जो भी अपने एक्सपीरियंसेस, वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहती हूँ ताकि आप लोग सब सुने शो को। तो इस वजह से हमने सोचा कि मैंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट से मैंने बात की है कि मैं एक किसी का नाम नहीं ले सकती। मैंने जावेद अख्तर जी से बात की है, मैं स्वर की जिनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल, लता जी, उनसे बात की। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें की है कि उनकी मम्मी ने उनको कैसे मारा, जिस वजह से फिर मैं अलका जी तक पहुंच पाई कि अलका जी की मम्मी ने उनको कैसे डांटा। तो ये सब बहुत पर्सनल बातें निकली जब, और मुझे याद है जब मैं उदित जी से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ था तो वो इतने इमोशनल हो गए थे, उनके आंखों में आंसू थे। तो ये सब यादें मेरे लिए भी, मेरे ज़िंदगी के पन्ने में ये हमेशा एक बहुत अहम हिस्सा बन के रह जाएगा। कि मैं तो इतना स्ट्रगल, सब स्ट्रगल करते हैं, करके ही आते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया एक किसान का बेटा होके। लेकिन जब आदित्य मेरा एक लड़का है, जब वो पैदा हुआ तो उसका बर्थ और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा साथ में ही आया था। ये एक ईश्वर की स्क्रीन प्ले कहिए या जो भी कहिए। लेकिन उसके बाद वो लड़का जब 5-6 साल का था तो पहली बार अनु जी ने हम दोनों को गवाया। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तो ये आप देखिए कि मेरा बेटा को पहली बार मेरे साथ गवाया इन्होंने, और वो लड़का आज राम जी की चाल देखो में आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि फरवरी के महीने में, अच्छा कि आपने पूछा है, फरवरी के महीने में, क्योंकि वैलेंटाइंस मंथ है और बिग FM 92.7 बिग FM एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहा है, चैरिटेबल कॉन्सर्ट है जो कि 15 फरवरी को होने वाला है, क्लोज टू माई हार्ट, जो सोनू जी करने वाले हैं। और 15 फरवरी हमारी एनिवर्सरी भी है,
16 फरवरी को पहली बार ऐसा होगा कि मैं सोनू जी को इंटरव्यू करने वाली हूँ कुछ पन्ने जिंदगी। But I would in the simple way say that A.R. Rahman is a very, very talented composer and I wish him a long life and healthy innings in music because he just started. He's a fantastic human being also. I've had a chance to meet him. Happy birthday, A.R. He is Oscar Award winner. A.R. रहमान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। And he is Oscar Award winner. We are proud of him. Many, many happy returns of the day. We are very shocked beyond words of this, untimely death of Farooq Sheikh. We had never imagined in our wildest dreams that about his said untimely demise. He was a gem of a person, a teetotaler, a committed actor, a true friend,
And he had all the positive qualities which, you cannot find in one human being. He was full of positive qualities. He was a great friend and he was a very well-read man. And from the heart, he was a child at the heart. And that could reflect on his face, the kind of face which he had, he was childlike. He had certain amount of innocence in him, which used to reflect at his face. So it's a loss. It's a loss of everybody. And I have yet to see a person, he has never spoken, he has never talked ill about anybody, and nobody has ever talked ill about him. So he is like लता मंगेशकर, कि लता मंगेशकर के गाने की आज तक कभी किसी ने बुराई नहीं की है. इसी तरीके से फारूक शेख की एज एन एक्टर, फारूक शेख की एज ए पर्सन, आज तक मैंने कभी किसी से बुराई नहीं सुनी. वो एक खुदा का, रब का, परमात्मा का वो एक स्पेशल बंदा था. अब ऐसे लोग अब तो पैदा ही नहीं होंगे, ऐसे लोग अब तो आएंगे ही नहीं. और बस मैं अपने दोस्त को अब आखिरी सलाम करने आया हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जो शौक़ उनकी फैमिली को लगा है, आप सोच सकते हैं कि फैमिली उनके साथ हॉलीडे के लिए जाती है, उनकी 2 बेटियाँ, उनकी वाइफ और उनकी डेड बॉडी के साथ उन पे क्या बीती होगी, ये तो उनसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता. तो हम उनका दुख तो बांट नहीं सकते, बस हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम आपके गम में शरीक हैं और ऊपर वाला आपको सब्र अता फरमाए. ऐसा था कि मैं मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा था कि मुझे फारूक शेख एज ए चीफ गेस्ट चाहिए अपने फंक्शन में, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं और जो बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों को बहुत सीख मिलेगी. और मेरे एक फ़ोन करने पे फारूक शेख आ गए और मैं बाहर था, मुंबई के बाहर था. उसने मुझे फ़ोन किया कि रज़ा भाई आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाऊंगा. और वो गए, बहुत अच्छी उन्होंने बच्चों से वहाँ पे बातें की. एवरीबडी वॉज सो हैप्पी. तो ये उनका एक एहसान रहेगा हमेशा ता ज़िंदगी तक. मैं उनका ऋणी रहूँगा. ये एहसान मैं उनका कभी भूलूंगा.
this world, you get cynical. He was one person, he was so genuine that it was not an act. He was so loving that it was not an act, and he was just the most pure soul I have ever met. इतना प्यार और इतना, I think यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से शायद मैं उनको बहुत लेट जानती हूँ. हमने जो प्ले किया साथ में आपकी सोनिया, लेकिन आई थिंक उनको उनसे मिल के by having met him, by having touched my life, I've been very enriched. He had wonderful thoughts and the way he put it across, अगर वो किसी बात पे अग्री भी नहीं करते थे, जिस तरह से वो बात वो explain करते थे, there was just so much love in him to give. I think it's a very big one. I've just met Rupa here, his Faruqi's wife. मतलब क्या कहना है? It's just devastated. She's devastated, and I hope she will gain the strength to bear with this loss. I think some things are just irreparable. They say nobody's indispensable, but that's not true. Some people are indispensable. You know, they're वैसे लोग आते नहीं दोबारा, वैसे लोग मिलते नहीं दोबारा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. फारूक जी वैसे एक दोस्त रहे हमेशा, तो उनकी दोस्ती बहुत मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है. हमने 8 टॉपिक फिल्म्स की एक साथ. हमारा 78 ऑनवर्ड्स आई न्यू हिम and we instantly became friends. दूरदर्शन, बॉम्बे दूरदर्शन में जब से हम लोग मिले एकदम से बातें करने लगे और बहुत ही मतलब it was just a rapport that we found with each other, which reflected in all the films that we did together. एक comfort level था जो मुझे किसी और एक्टर के साथ नहीं मिला. फारूक जी शायद whether he made me comfortable or we were in each other's company, we were just very natural, and you know वो एक उनकी खूबी भी थी because वो थिएटर से थे, trained actor थे, मैं नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो हिंदी में. मेरा नाम श्रेयस साड़ीवाला है और मैं इसका रिपोर्टर नहीं बना. यारियां जो है वो एक बहुत ही फन फिल्म है, यूथ पे है जैसे सबको मालूम है. और जो मूवी है वो इट टॉक्स अबाउट अ ग्रोथ ऑफ अ यंग पर्सन फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू टर्निंग इनटू एन अडल्ट. वो कैसे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करता है टुवर्ड्स हिज नेशन, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज लव एंड लॉट मोर. और मूवी में सब कुछ है. देयर इज फन, मस्ती, ड्रामा, फ्रेंड्स, इमोशन, एक जो टुगेदरनेस होती है. सो बेसिकली यू विल लाफ थ्रू द फिल्म. जहाँ पे दोस्ती है, जहाँ पे यारियां हैं, वहाँ पे सिर्फ हंसी मजाक नहीं, वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, वहाँ पे रोना धोना भी होता है. नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं है. यारियां इज ऑल अबाउट एक्चुअली कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ. और कॉलेज लाइफ में जब हम लोग ग्रुप में होते हैं, जब हम लोग हमारे दोस्त के साथ होते हैं, तब लड़ना झगड़ना, हंसी मजाक, नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी सब होता है. सो इट्स एन मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. और पार्टी की रैगिंग भी होती है. एग्जैक्टली. एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, हर रोज होती है. हम रात को रोज से सॉरी भी बोलते हैं, फिर अगले दिन फिर रैगिंग करते हैं हम लोग. मैं ये कहना चाह रहा था कि जो यारियां हैं इसके अंदर आपको ना कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा. जो सब कुछ आप लोगों ने अपने कॉलेज में मस्तियां की है ना, हर वो चीज आपको देखने को मिलेगी. क्योंकि उसका एक अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होएगा. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कॉलेज में होते हैं
तो हमारे सर पे टीचर्स होते हैं, वो हमारे को ज़्यादा मस्तियाँ करने नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीचर थी ना, हमारी डायरेक्टर दिव्या जी, उन्होंने हमारे को फुल परमिशन दिया मस्ती करने की। तो हमने दिखाया है कि कॉलेज के अंदर मस्ती कैसे कर जा सकती है, बंक कैसे कर सकते हैं और लड़कियाँ कैसे पटा सकते हैं। जो आप रियल लाइफ में करते रहते हो कॉलेज लाइफ में, वो आपको एग्जैक्टली सेम स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो जब आप यारियां देखोगे पिक्चर, तो आप बोलोगे कि ओह माय गॉड दैट्स मी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा दोस्त ये करता है। दैट इज व्हाट वी वांट टू पोर्ट्रे बाय यारियां। इट्स प्योर रियलिस्टिक, वेरी रियलिटी, जो रियलिटी में होता है, सिमिलरली वी आर पोर्ट्रेइंग दैट ऑन स्क्रीन। दैट्स व्हाट यारियां इज फॉर यू। इन्होंने मुझे रुलाया, जैसे आपने ट्रेलर में देखा है। मैं बहुत सीधी सादी, मेरा जो कैरेक्टर है सलोनी का, वो बहुत सीधी सादी लड़की है, इनोसेंट है, और ये बहुत ही शैतान और कैसनोवा टाइप का लड़का है। तो आप सोच सकते हैं क्यों रुलाया होगा। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको 10 जनवरी को मूवी देखनी होगी, जानने के लिए कि इसने इस बेचारी लड़की को क्यों रुलाया। मेरे को ना एकदम से आपने बोला ना आप हंस दीजिए, तो मेरे को हंसी नहीं आई, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा लक्ष्य का क्या लक्ष्य होगा यारिया में, उसमें ज़्यादा हंसी आ गई, क्योंकि लक्ष्य का कोई लक्ष्य ही नहीं है पिक्चर के अंदर में। वो जो जैसा उसका जो नाम है ना, वो उससे बिल्कुल उल्टा है। वो सिर्फ मस्तीगिरी में और मजाक में और काइंड ऑफ कि देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द मूवी विद हिम, दैट्स हार्मोनल लोचा। तो मैं कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसे बोलते हैं हार्मोनल लोचा, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रही है, आई थिंक मेरे यारों के साथ भी चल रही है। नहीं, ये तो लड़की है, इनके साथ नहीं होगी, वो सिर्फ लड़कों के साथ में होती है। तो वो प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं आधे लोगों के बाल उड़ जाते हैं, आधे लोगों के बाल कुछ ज़्यादा उग जाते हैं, आधे खड़े हो जाते हैं बाल थोड़े बिल्कुल, तो ये आधे नॉर्मल रहते हैं। हाँ, तो ये कुछ एक अजीब सी बीमारी सी है, ये कुछ है जिसके अंदर आपको लड़कियां कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग जाती हैं, और कभी कभी कुछ ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। तो हमने आई थिंक उसको एक बहुत ही क्यूट वे में प्रेजेंट करके दिखाया कि हार्मोनल लोचा एक्चुअली में वाहियात नहीं, बहुत क्यूट भी हो सकता है, और हर किसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना इंसान इनकम्प्लीट है। ये मतलब हार्मोनल लोचा अगर आपको हुआ नहीं, वेरी रियलिस्टिक, यू नो, कॉलेज एज में जब आप टीनेजर्स हो, आप 21 बिटवीन 19 to 21 जब आप होते हो, तब ऑटोमेटिकली शरीर में हार्मोनल लोचा स्टार्ट होता है। यू आर अनेबल टू डिसाइड। जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा, क्योंकि हमारी जो फिल्म की शुरुआत है ना, उससे 6 महीने पहले हमारी वर्कशॉप शुरू हो गई थी इस फिल्म को लेकर। और उस वर्कशॉप के अंदर हमारे जो डायरेक्टर साहिबा हैं, उन्होंने हर एक चीज़ पहले से ही सिखा दी थी, डांस से लेकर, एक्टिंग से लेकर, एक्शन से लेकर, इमोशन से लेकर। तो हर एक चीज़ हमारी रिकॉर्ड की जाती थी कैमरे के ऊपर। तो जब हम फिल्म पे शूट करने पहुंचे तो ऐसा लगा हमारी पिकनिक शुरू हो गई है, क्योंकि हम पिक्चर तो ऑलरेडी शूट कर चुके थे। पिकनिक नहीं, एक कॉलेज का एक सफ़र शुरू हो गया था, और मैं बताना चाहूँगा उनकी भी ये डेब्यू मूवी है, और हम सब भी इसके अंदर डेब्यू कर रहे हैं। तो एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर आप इतना मतलब दिखता, पता नहीं लगता कि यार ज़्यादा नॉलेज होगी, किसी को नहीं होगी, बट आई फील कि इट्स नॉट जस्ट अस, पूरी इंडस्ट्री आज ये बोल रही है, और हम लोग रोज़ सुनते हैं कि दिव्या जी ये मूवी कहीं से लगता नहीं है कि किसी डेब्यू डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है। ये द वे इट्स बीन शॉट, इट्स सो ब्यूटीफुल। पर आप हमें जब हम शूटिंग के टाइम पे भी हमारे को एक बार ऐसा नहीं लगा कि हमारी डायरेक्टर बिल्कुल नई अभी मूवीज बनाने के लिए उतरी है। द विजन शी हैड वाज सो क्लियर। She's a complete perfectionist, if I have to say, and she takes care of every department on her own. मतलब खाली डायरेक्शन ही नहीं, उन्होंने प्रोडक्शन भी संभाली, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स भी खुद इंटरेस्ट लिया, उन्होंने कास्टिंग भी खुद की थी। She didn't appoint a casting director. उन्होंने 5 गाने कोरियोग्राफ किए फिल्म के अंदर। तो every department she's taken keen interest in, and I have never seen someone who can multitask to that level. So much dedication, so much love and passion for her work. मतलब उनको अपनी स्क्रिप्ट ऐसे आप नींद में उनको बोल देंगे, वो बोलेंगे सीन नंबर 67 ये है और उसमें ये सीन्स है और ये so literally she is so passionate about her work. So. And you know, हम लोग सब न्यू कमर है, तो हमको पूरा जर्नी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, हमको बहुत सीखने को मिला. We really learned a lot how to be on camera, how to be like, you know, a lot of things we have learned as newcomers. So overall the entire experience was fun, masti, maza, learning experience, okay? और the bond we share, Yaria, like, you know, honestly, Yaria is not only displayed on screen but off screen भी बहुत हमारी अच्छी यारिया है. झूठ बोल रहा है. मेरा डायलॉग नहीं है ना, वो मेरे कैरेक्टर पे जाता है. मैं तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करती हूँ. मैं तो ट्रू लव, एक सिंगल पार्टनर में बिलीव करती हूँ और लव को बहुत वैल्यू करती हूँ. वो डायलॉग निकोल देती हैं, लेकिन मैं आपको डायलॉग बता सकती हूँ. जो डायलॉग था कि प्रिंस चार्मिंग मिलने से पहले बहुत सारे मेंढकों को किस करना पड़ता है, तो ये डायलॉग था. आप किसी मेंढक को किस कर रही है? जी नहीं, मैं
इंसान को ही मेंढक को नहीं, करेंगे। अगर उस इंसान को आप मेंढक कहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह मैं तो सकती। पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं, अच्छा लगा मुझे, देखो कितना सोचती है मेरे मेंढक बारे में। को मैं यही देखना चाहता था कि क्या ये सबके सामने ऐसे बोलेगी कि मैं मेंढक हूँ। मैं बस, वो कहते हैं ना कि एक आग का दरिया डूब के जाना है, मैं डूब के जाना चाह रहा था, इन्होंने मेरे को खींच लिया, पर नहीं, मैं तुम्हारे को शॉर्टकट से लेके जाती हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हर इंसान, जो हम सारे लड़के हैं ना, हमारी लाइफ में और लड़कियों के लाइफ में भी जो पहला किस होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि वो, जी हाँ, वही मैं इन्हीं पे आ रहा हूँ, मैं इन्हीं पे आ रहा हूँ। मिस्टर देव शर्मा, द सुपर बाइकर जी, पहले तो ये बताइए कि लाइफ में फर्स्ट किस कब किया आपने? मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट किस किया था जब मैं 19 साल का था, और मैंने अपनी छत पे, बारिश हो रही थी, और मैंने अपनी एक प्यारी सी दोस्त को। अंकल आंटी, मैंने कहा था ना ये शरीफ नहीं है, देखो आज मैंने सारी दुनिया के सामने निकलवा दिया बना फाइनली। दी, रोमांटिक लव स्टोरी बना दी, बारिश हो रही थी, मैं 19 साल का था, यशराज की मूवी बना दी। मेरा पूरा मकसद निकला है। आंटी अंकल, मैंने आपको कहा था ये लड़का शरीफ नहीं है, आप ही बोलते थे, अब देखो कोमल जटाएं, इनकी जटाधारी बोल दिया मैंने। जी, क्या बता? पहली किस के मैं एक्चुअली मेरे इनकी पहली किस, मेरा फर्स्ट डायलॉग, हर घंटे एक नई किस होती है। उसने जो कहा वो सच है, हर घंटे एक नई किस करते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे पढ़ने, मतलब कुछ सीखो, कुछ मुझसे सीखो। अरे नहीं, इनका बस चले तो पोस्टर में से भी लड़के को मारने का आता है। कुछ मुझसे सीखो, लड़की पढ़ाने का स्टाइल मुझसे सीखो। पहले वो तो सीख लो, पहले ये बताइए पोस्टर से लड़के बाहर कैसे लाते हैं। Anyway, तो मेरा I won't say I have one favorite dialogue, क्योंकि जो भी डायलॉग मैंने I've said in the movie सब मेरे favorite है, because मेरे डायलॉग्स हैं, तो I have a personal attachment to the entire script and to whatever I've said. But एक very common और popular डायलॉग है जो ट्रेलर में दिखाया जाता है, कि जब लक्ष्य आता और मुझे बोलता है कि आज मेरी लाइफ का फर्स्ट किस है यार, तो मैं पार्टी बोलता हूँ लड़की को या ये लड़की को। गलत स्टाइल में बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे बोलता है, लड़के को या लड़की को। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, मतलब वो मेरे को नीचे गिरा देता है। That is one dialogue and it's very funny, and I have a very funny memory with the dialogue, क्योंकि you know it was very difficult for me to pronounce लड़के को या लड़की को, लड़का लड़की में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड ऑल्सो -8 डिग्रीज में हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत ठंड थी, तो मैं कांप रहा था कि लड़के को या लड़की को, और मैं बनियान पहन रहा था, तो देयर वाज नो शॉल और एनीथिंग और अ जैकेट ओवर मी, सो आई वाज फीलिंग वेरी कोल्ड। हमारे कपड़े भी छीन के बैठा हुआ था, झूठ बोल रहा है, उल्टा हम बेचारे, हमें बर्फ में फेंक देता था। कैसी यारियां है या बॉस, कैसी यारियां है, यही यारियां है, और यही मस्ती आप जो यहाँ देखते हैं वो 10 जनवरी 2014 अपने यारों के साथ। तो अगर आपको प्रॉपर मस्ती एंजॉय करनी है तो आइए 10 जन को मूवी देखिए। So, welcome. You excited? Thank you, very excited. Just saw the commercial. Looks absolutely stunning. Beautiful. When I couldn't afford a French PA, which I bought for 15,000 rupees, there's an actor that everyone knows here, named Mr. Anil Kapoor. He used to drive an Audi. I think it was a A4 and then an A6. That was I think the first Audi that we'd ever seen in our country. And that time, this car was stuck in my head. And then I did own a A8, and now the RS7. No, she's magnificent. I really like her. The 5 is also really amazing, but I thought that the 7 was more me. It has the speed. I mean, it's really fast. Obviously, we're not going to drive it that fast here, but still has the speed. 0 to 100 in 3.9 seconds. I think we will try that on the Autobahn in Sydney. Records are always here to be broken, huh? So we can Out here will just be on 0 to 9. And she's beautiful. I really like the car. She's spacious. She's has very sturdy car.
आयला और उइमा दोनों है साथ में ये. So there's two things we need. I think we need a key. 100%. Thank you. Yeah. Enjoy. Thank you. Thank you. The other thing. Yeah. Thank you. Enjoy. You have to take me for a ride, right? This way. Go still. Ladies and gentlemen, the floor is now open for a Q&A session. देखो, गाड़ी का इतना फास्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी इतना फास्ट चलाओ. अंदर वाला और बाहर वाले दोनों सेफ होने चाहिए. No, one car had a number 2727 and then one had a 272. पता नहीं पहले से आया तो they think that this is my favorite number. तो अभी जब चली आ रहा है तो all the cars come in as 272, 277 ऐसा पता नहीं क्या है. I don't know, but this seems to work. लेकिन एक ऐसा भी बहुत झोल हो गया है कि गाड़ी चलाओ, मिस्टेक निकालो और गाड़ी दो और वापस एक नई गाड़ी लो. ये आई एम नॉट सेइंग कि सोनू सूद ने किया है, बट ये काफ़ी लोग करते हैं. मुझे भी आइडिया आया था. आई वुड लव इट, व्हाई नॉट. अब इसका जवाब क्या बोलूँ कि नहीं, ऐसा नहीं. इन लोग बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं, इनको यही गाड़ियों पर स्टिक करना चाहिए. जिनका काम ऑटो बनाने का है वो ऑटो बनाए. Look, I think the performance, as I said before, we've got the widest range, and it's certainly something that's been great for the brand. We've got some exciting products coming, none of which we'll discuss today, other than the RS. No, we'll talk about that later. We'll see. सलमान, देखो कौन कौन डिजर्व करता है यार. स्टाइल को येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत. सलमान, Salman. I think if I have to gift this car to somebody, the person who would actually look good in it would be, I think Katrina would look good in this car. Salman, but I'm not gifting it to her. First, why to? मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहूँगा इस गाड़ी में. ज़माना किसी ने पिक्चर देखी है? मिस्टर ऋषि कपूर थे इस पिक्चर के अंदर. My father wrote the movie. उसके अंदर एक Mr. Jagdish Sharma had produced that film. So in that film there was a herald. So after they used that car in the film, that car came to me. So I used the car for a bit, and then I got a French Fiat, which I pushed for about 500 miles, and drove for about 100. I bought it for 15,000 rupees, and every time the car used to stall. And then the same car I used, I got it done up, and I used it in Maine Pyar Kiya. So these were my first two cars. एक
फ्री में मिली थी 5,000 में, एक 15,000 में मिली। जी 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 कर रहे हैं और जहाँ पे फिर जा रहे हैं हम, वहाँ पर एक 100 लोग बच्चों का हार्ट का इलाज कर रहे हैं, जैसे कि बाईपास है, इंट्रिकेट हार्ट इलाज हैं वो कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे तो उसके ज़्यादा भी करेंगे। तो वी आर गोइंग टू अबाउट 8 or 10 प्लेसेज, और जहाँ पर जा रहे हैं, अगर स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं, अगर छोटे छोटे से सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पर भी कहने का मतलब मेन सिटीज़ में नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जितने भी लोग हैं उन सबके हार्ट के इलाज करा देंगे, बच्चों के। सो राइट नाउ हर जगह, आई थिंक अबाउट 8 or 10 प्लेसेस, हर जगह में 100 का एक आंकड़ा है, निकाला है हम लोगों ने कि अरे हाँ यार, कल मैं नागपुर से आया हूँ। This is going to go all over the country, right? My request to everybody, जितने भी पीछे गाड़ियों में हैं और मोटरसाइकिल पे हैं, आराम से चलाओ, क्योंकि एक तो गिर जाओगे, बिल हम पर फटेगा, और फिर उस जोश के अंदर कभी कभी एक ऐसा हो जाता है कि एक हमारा इरिटेशन बढ़ जाता है, और वो जो बॉडीगार्ड्स हैं वो उस जगह के बॉडीगार्ड्स हैं, उनको एक काम मिल जाता है कुछ करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो कि वो बॉडीगार्ड्स कुछ कर बैठे। All the parents who are taking their little बच्चा लोग to come and see me in the भीड़ भाड़, वो दूर रहें, क्योंकि that is not in our control. My request to all the fans है कि अगर आए हैं तो बस खड़े होके दूर से admire कीजिए। I understand all the appreciation and all the respect and all the hangama there, but इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। I will understand कि आप जो कह रहे हो, जो चीख पुकार जो है वो आपके दिलों के अंदर है। You don't have to show it to me. I can see it. It is. I was scared yesterday. It is very unsafe. A lot of people, have almost missed falling down and having accidents. And I saw a lot of kids being pushed around in the bheed, in the crowd. So guys, just take it easy. Aram se. You're coming there, you're coming to watch. We're going to all the functions, we're going all over the country. तो प्लीज इतना नहीं तो क्या होगा कि अगले टाइम पर ये going to each state, going to cities, going to गांव, villages, that will not happen. So please control रखो इसके ऊपर. In fact, we had 2,500 participants come through our driving experience, a lot of which were at the BIC in Greater Noida. So, and that'll increase in the years to come, including this year. Thank you all for being such a wonderful audience. Wish you all a great evening.